اہل سنت کے ہاں جو آخری درجے کا جاہل شخص ہے اس کو بٹھایا گیا، اور یہ ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ایسے جہال کو ایسے جلیل القدر علماء کے سامنے نہ بٹھایا جائے جو آ کر اپنی چرب زبانی استعمال کرتے ہیں، کوئی منطقی عقلی دلیل دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ جہالت دیکھے گا، اس کا کانفیڈنس لیول دیکھے گا، جو جاہل ہوتا ہے وہ اس طرح کا کانفیڈنس دکھاتا ہی ہے، اور تمہیں اگر ضرورت ہوئی تو پھر مجھے آ کے بتانا، جیسے پہلے تم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اویس ربانی صاحب نے جو ایک مناظرہ کروایا امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے متعلق مکتب اہل بیت کی طرف سے، نہایت ہی ایک عظیم شخصیت جو مختلف مناظرات میں اپنے علم کا لوہا منوا چکی ہیں، اور مد مقابل کو انہوں نے دندان شکن جوابات کے ساتھ پسپا کیا، جناب زہرائی صاحب حافظہ اللہ، اور ان کے مقابل میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل سنت کے ہاں جو آخری درجے کا ایک جاہل شخص ہے اس کو بٹھایا گیا، اور یہ ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ایسے جہال کو ایسے جلیل القدر علماء کے سامنے نہ بٹھایا جائے جو آ کر اپنی چرب زبانی استعمال کرتے ہیں اور کوئی منطقی عقلی دلیل دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس مناظرے میں کچھ ایسے ادلہ اگرچہ زہرائی صاحب نے تمام ان اعتراضات کے جوابات مدلل انداز سے دیے، اور اپنے مقدمے کو جو امام مہدی کے حوالے سے تھا اس کو بڑا مضبوط انداز سے پیش کیا، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے اور اس وقت حوالہ جات کو اس انداز سے ایڈریس کرنا بھی ممکن نہیں ہو پاتا، تو ہم اب آپ کی خدمت میں اس چشتی نے جو فضولیات بیان کی اور جو اپنی طرف سے فن خواں بنا، بڑا پڑھا لکھا بنا، اور وہاں بیٹھ کے لمبی بھی چھوڑتا ہے، تمہارے سامنے منیر چشتی بیٹھ تو 2 منٹ میرے سامنے بیٹھ، میں تجھے بتاؤں گا کہ تو منیر چشتی، پھر دیکھتا ہوں بریلویوں کی بیوہ تمہارا حال میں کیا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہاری اتنی خیانتیں پکڑ چکا، تمہیں تو شرم نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک حدیث جو ہے سنن ابی داؤد کی پیش کروں گا، اور دوسری بھی سنن ابی داؤد سے پیش کروں گا، اور پھر میں انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اور جو سوال آپ نے کیا ہے جہریت کی موت مرنے والا، اور ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں حافظ سجاد علی زہرائی صاحب، انہوں نے بھی اپنے بیان کے اندر اس بات کو جو ہے بیان کیا ہے، تو اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، جہاں حضرت امام مہدی کے متعلق کہ مہدی جو ہیں وہ تشریف لائیں گے اور وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا اسمہ اسمی و اسم ابی، کہ امام مہدی جو، اور یہ ہمارے نزدیک روایت جو ہے صحیح ہے، امام ہے۔ یہ کہتے ابو داؤد سے بیان کی کہ امام مہدی جو ہیں ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آگے چل کے اگلی قسط میں تفصیل سے کلام کریں گے۔ اس نے ایک اور جو روایت سنن ابی داؤد سے پڑھی ہے، انشاءاللہ پہلے آج اس پہ کلام کرتے ہیں۔ اور بہت جلدی کہیں کہ نہیں یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ دعویٰ کریں، الحمدللہ میں بیٹھا ہوں، میں عاصم جو ہے ان کی توثیقات پر آپ مجھے جتنا ٹائم دیں گے 10 منٹ 15 منٹ میں بولتا جاؤں گا، اور کتابوں کے حوالہ جات میں کروں گا، تمہاری طبیعت صاف کروں گا چشتی، ٹینشن نہیں لو، میں تمہاری حوالوں کی نا یہ پھلجھڑیاں نکالوں گا، پیش کروں گا کہ یہ سکھائیں۔ دوسری حدیث ہے سنن، ہاں اب یہ دوسری حدیث جسے ہم نے آج انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کرنا ہے، اور اس کی جہالت دیکھے گا، اس کا کانفیڈنس لیول دیکھے۔ خیر جو جاہل ہوتا ہے وہ اس طرح کا کانفیڈنس تو دکھاتا ہی ہے۔ ابی داؤد کی جناب حضرت مولا علی المرتضیٰ حیدر قرار کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے جناب حسن کی طرف دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا فقال ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور فرمایا کہ اس کی نسل سے وہ آئے گا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، یعنی امام مہدی جو ہے وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے آئیں گے، اور یہ بھی سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4290 ہے۔ اب یہ روایت آپ نے ملاحظہ کی، اب دیکھیے گا اس کی سند کے اوپر جناب موصوف کیسے اچھل کود کریں گے، اور ایسے جو جاہل منکیز ہیں ان کو تو ہم نے کئی دفعہ نکیل ڈالی اور ابھی بھی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ حدیث جو ہے اس کے متعلق بھی اگر کوئی اشکال وارد کرے گا، اس کے اندر ایک راوی ہے ابو اسحاق سبی، اس کے متعلق اگر حافظ صاحب کلام کریں گے تو انشاءاللہ اس کلام کا بھی جواب دوں گا۔ یہ 2 روایات ہیں جو اچھا جی، حافظ صاحب کلام تو نہیں کریں گے، میں اس کے اوپر تمہاری ابھی طبیعت بناتا ہوں، اور تم میں اگر ضرورت ہوئی تو پھر مجھے آ کے بتانا، جیسے پہلے تم اپنی جہالتیں دکھا کے مجھ سے رسوا ہو چکے ہو، تو اب مزید آج رسوا ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ سنن ابی داؤد سے یہ روایت بیان کر رہا تھا، ٹھیک ہے جی، سنن ابی داؤد ہے، اور اس میں اس کی کیا کہتے ہیں روایت نمبر ہے 4290، کہ سند یہ ہے ابو داؤد کیا ہے جی، ہارون بن مغیرہ، عمر بن ابی قیس، شعیب بن خالد، ابی اسحاق، یہ سب اسحاق کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں اگر بیان کریں گے تو میں بیٹھا ہوں، تو بتانا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قال علی
वनादर इला इब्न हसन, इमाम हसन इस्लाम की तरफ उन्होंने निगाह की कि इन्न इब्न हाद सैयदुन कमा सम्माहुन नबी व सयखरुज मिन सुल्ब, इसकी सुल्ब से जो है वो राजुलन एक शख्स आएगा, युसम्मा बिस्म नबीयकुम, जो तुम्हारे नबी के नाम पर उसका नाम होगा, युशबिहु फिल खुल्क, वो खुल्क में तो रसूल के मुशाबे होगा, वला युशबिहु फिल खल्क यानी अखलाक में तो मुशाबे होगा लेकिन ज़ाहिरी तौर पर रसूलुल्लाह के मुशाबे नहीं होगा। सुम्मा ज़ाकरा किस्सा यमला उल अर्द, फिर उसके बाद जो है वो एक किस्से को जनाब अबू दाऊद कहते हैं वहाँ पे एक ज़िक्र किया इमाम अली ने, और यमला उल अर्द अदला और ज़मीन को अदल से भर देगा। अलबानी क्या कहते हैं, ये रिवायत ज़ईफ़ है, ठीक है। तो ये अबू दाऊद की रिवायत थी। अभी हम इसकी मुकम्मल तफसील आपकी खिदमत में बयान करते हैं। ये सुनन अबी दाऊद अल-जुज़्उ सादिस है, इसकी छठी जिल्द है, रिसालतुल आलमिया की चाप है। इसमें जब हम जाते हैं तो वही रिवायत 4290 अबू इसहाक़ से कि इमाम अली ने देखा अपने बेटे हसन की तरफ। और इसके एक नंबर पे हम आ जाएं तो कहा कि इस्नादुहु ज़ईफ़, शेख बरनऊ साहब कहते हैं इसकी सनद ज़ईफ़ है, लिइबहाम शेख अबी दाऊद फ़ी, कि इसमें अबू दाऊद का जो अबू दाऊद का शेख है उसमें इबहाम है। व अबू इसहाक़ व अम्र बिन अब्दुल्लाह सबई रा अलियन, अमीरुल मोमिनीन को इसने देखा तो है। तकरीबन 33 हिजरी में इसकी विलादत है अबू इसहाक़ सबई की, और इमाम अली अलैहिस्सलाम 40 में दुनिया से, क्या 6-7 साल का था। इसने इमाम अलैहिस्सलाम को देखा तो है लेकिन उनसे इसने रिवायात नकल की हैं, ये साबित नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अल-बअस वन-नुशूर किसकी है जनाब, ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, अश-शेख अल-इमाम अबी बकर अहमद बिन अल-हुसैन बिन अली बिन मूसा अल-बैहक़ी, जनाब बैहक़ी की, और इसके जो तहकीक है अबू आसिम शवामी अल-असरी हैं, और मकतबा दारुल हिजार की ये चाप है, हिजाज़ की ये चाप है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर इसी रिवायत को, अबू दाऊद की रिवायत को ये नकल करते हैं अबू इसहाक़ सबई की, वही अमीरुल मोमिनीन से, कि उन्होंने अपने बेटे हसन की तरफ देखा। और इसमें क्या है कि सुनन अबी दाऊद, इसकी रिवायत नंबर है 4290, इसनादहु ज़ईफ़ वक़ाल अल-ख़त्ताबी फ़ी मआलिम सुनन हाज़ा मुनक़ते, ये रिवायत मुनक़ते है। क्यों? चूँकि अबू इसहाक़ सबई ने इमाम अली को देखा तो है, यानी फ़कत उसकी रोयत साबित है, वह इसके अलावा उसने कोई रिवायात नकल की हो ये साबित नहीं है, ठीक है जी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक और मुख्तसर सुनन अबी दाऊद लिल मुंज़री जो है वो अब्दुल अज़ीम मुंज़री की, मौलफ़ इसके हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीम बिन अब्दुल क़वी अल मुंज़री हैं। ये यहाँ पर क्या बयान करते हैं, इसी रिवायत को बयान किया कि इन्ना इब्नी हादा सैयदुन कमा सम्माहुन नबी हादा मुनक़ते, ये रिवायत क्या है, मुनक़ते है। अबू इसहाक़ सबई ने फ़क़त अमीरुल मोमिनीन को देखा है, उससे उनकी रिवायात साबित नहीं है। उसके बाद ये अल-मनारुल मुनीफ़ फ़ी सहीह व ज़ईफ़ इब्न क़य्यम अल-जौज़िया, ये मुतवफ़ा हैं 751। इसमें जब हम जाते हैं तो इसके मुहक्किक जो हैं वो बकर बिन अब्दुल्ला हैं, और यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाएँ इसी रिवायत को नकल करते हैं। वफ़ी सुनन अबी दाऊद अन अली अन्नहु नज़रा इला इब्न हसन कि इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन कमा सम्माहुन नबी रवाहु अबू दाऊद, और क्या कहते हैं ज़ईफ़ अबी दाऊद, ये अबू दाऊद ज़ईफ़ अबू दाऊद है, उसमें इस रिवायत को नकल किया गया है। उसके बाद मुलाहिज़ा फरमाएँ अल-बिदाया वन निहाया इब्न कसीर दिमश्की की ये किताब है, और इसमें तहकीक है शेख अब्दुल कादिर अन-नऊत, इसकी अल-जुज़्उ साबिअ अशर है, इसकी 17वीं जिल्द है। इसमें इसी रिवायत को इब्न कसीर ने नकल किया कि काल अबू दाऊद हुद्दिस्तु अन हारून बिन अल-मुग़ीरा वगैरह वगैरह वगैरह, मुग़ीरा के बाद वगैरह वगैरह। और जनाब 3 नंबर पे क्या कहते हैं, रवा अबू दाऊद व इस्नादुहु ज़ईफ़, ठीक है जी। उसके बाद मुलाहिज़ा फरमाएँ इस्तिजलाब व इर्तिक़ाल गुरफ़ बिहुब्ब अक़रबा रसूल व ज़वी शरफ़, क्या कहते हैं जी कि शम्सुद्दीन सखावी की है, अल-जुज़्उल अव्वल है, इसकी पहली जिल्द है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर बड़ी तफसील से इसकी सनद को बयान किया गया। यहाँ पर यह रिवायत नंबर है 265, वही रिवायत नकल की है कि इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन कमा सम्माहुन नबी। एक नंबर पर इसके मौक़िफ़ ने क्या बयान किया, तवज्जो कीजिएगा। अब यहाँ पे बड़े तफसील से इसकी सनद को बयान किया कि इस्नादुहु मुनक़ते, इसकी सनद क्या है, मुनक़ते है। कि अख़रजहु फ़ी किताब अल-महदी, पूरी इसकी सनद को बयान किया। वहाज़ल इस्नाद फ़ीह इल्लतान, इसमें 2 इल्लतें पाई। अल-ऊला सिमाउ अबी इसहाक़ सबई मिन अली फ़ला युसह लहु मिन्हु समा, वो कहते हैं कि इसहाक़ बिन सबई का अमीरुल मोमिनीन से समा साबित नहीं है, कि ये रिवायत वो इमाम अलैहिस्सलाम से नकल करें। उसके बाद काल अल-मुंज़री फ़ी मुख्तसर अबी दाऊद हाज़ा मुनक़ते,
उसने भी मुंजरी ने भी कहा है कि ये रिवायत क्या है, मुनक़ते है, सभी ने फ़कत देखा है। और फिर कहा कि मरासील इब्न अबी हातिम सफ़ा नंबर 121 पे भी, जाम तहसील सफ़ा नंबर 300 पे भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अल ये पहली इल्लत थी जिसकी वजह से रिवायत ज़ईफ़ है। उसके बाद कहते हैं अल इल्लतु सानिया क़ौलु अबी दाऊद, वो कहते हैं हुद्दिस्तु अन हारून बिन अल मुग़ीरा फ़ज़ाहिरु अदमु समाइही मिन्हु, ज़ाहिर क्या है कि हारून बिन मुग़ीरा से उसका सिमा साबित नहीं है। वह कज़ालिक, इसी तरह क्यों, फ़इन्ना हारून मिन तासिया, ये तबका तासिया में से है, 9वें तबके में से है। वह यार में अब्दुल्लाह बिन मुबारक इसने नकल किया, याह्या बिन मईन ने से नकल किया, वमन फ़ी तबका तेमा, जो इन दोनों के तबकों में थे उन्होंने इससे नकल किया गया। तहज़ीब जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 13 से ये हवाला उन्होंने बयान किया। वह अबू दाऊद मिन अल हादी अशर, और अबू दाऊद जो हैं वो 11वें तबके में से हैं। वो कहते हैं और व इला हादिहिल इल्ला अशार अल मुंज़री, और इसी चीज़ की तरफ जो है वो मुंज़री ने भी इस इल्लत की तरफ क्या है, इशारा किया। तो लिहाजा ये जो रिवायत चिश्ती साहब पढ़ रहे थे, ये बरेलवियों की विडो, इसने क्या जो रिवायत बयान की और कहा कि अबू इसहाक़ सभी पे मैं बैठा हूँ, ये इतराज़ करें, तो भाई तुम्हारे अपने आलाम और मुहद्दिसीन ने एतराज़ात की भरमार की है इसके ऊपर। तो 2 इल्लतें उस पर बयान की गई हैं और इसके ऊपर तसरीहात सारे उलमा अहले सुन्नत की हैं। उसके बाद अगले मुलाहिज़ा फरमाए फ़ातिमा बिन्त नबी, इसमें जब आप जाते हैं तो यहाँ पर इब्राहीम अब्दुल्ला अल मुदहिश, ये नासबी है, इसने इस किताब में तशय्यो के हवाले से बड़ा कुछ वो रिवायात अपने बचाने की बड़ी कोशिश की है। मैं इसके ऊपर पहले भी तफसील से किसी प्रोग्राम में कलाम कर चुका हूँ। यहाँ पर इस रिवायत को लेकर आता है, इसकी गालिबन दूसरी जिल्द है, अपनी 5वीं जिल्द है। यहाँ पर क्या है कि अन्नल महदी मिन वुल्द फ़ातिमा मिन हदीस अली इब्न अबी तालिब मौकूफ़न। उसके बाद अबू दाऊद से ये रिवायत को नकल करता है। उसके बाद यहाँ पे आखिर में क्या कहते हैं, मुलाहिज़ा फरमा अगले सफ़े पे, हाज़ा ज़ईफ़ुन मुनक़ति मिन जिहतैन, ठीक है। शेख अबू दाऊद लम युसम्मा, उसका मालूम नहीं है, सभी लम यस्मा मिन अली, सभी ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से सुना नहीं है। तो 2 इल्लतें इसमें पाई जाती हैं। व अल्लाहु बिल अमरैन अल मुंदरी फ़ी मुख्तसर सुनन नबी दाऊद वल अलबानी फ़ी सिलसिलत ज़ईफ़ ज़ाद अल अलबानी क़ाल अबू इसहाक़ कान इख्तलत व शुएब बिन खालिद लैसा मज़कूरन फ़ी मन रवा अन्हु क़ब्ल अल इख्तिलात, कि अबू इसहाक़ जो है वो इख्तिलात का शिकार हो गया, तो शुएब बिन खालिद उनमें से नहीं है कि जिसने इख्तिलात से पहले उससे रिवायत नकल की हों। तो ये इसका हो गया। उसके बाद अगला मुलाहिज़ा फरमाएँ तोहफ़तुल अहवदी बशरह जामी तिरमिज़ी मुबारक फूरी साहब, इंशाल्लाह पूरा इसका हिसाब किताब करके जाएंगे। ये जो बढ़ के मार रहा था चैनल के ऊपर बैठकर, अल-जुज़्उ सादिस की 6ठी जिल्द है, यहाँ पर इसी रिवायत को नकल करते हैं सफ़ा नंबर 486 पे। यहाँ पे नकल करने के बाद वह खुद क्या हदीस काल मुंज़री हाज़ा मुनक़ते, अबू इसहाक़ के सभी अलियन अलैहिस्सलाम रोया कि ये रिवायत क्या है, मुनक़ते है। तो उसके बाद मुक़द्दमा इब्न खलदून में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर भी एक नहायत लतीफ़ मतलब जो है वो बयान हुआ है। मुलाहिज़ा फरमाएँ, वो कहते हैं कि अबू इसहाक़ के सभी, अगरचे से सही में रिवायत है, फ़क़त साबत अन्नहु इख्तलता आखिर उम्र ही, कि ये अपनी उम्र के आखिर में इख्तिलात का शिकार हो गया। व रिवायतुहु अन अलियन मुनक़तिआ, और इसकी जो रिवायात अमीरुल मोमिनीन से हैं वो मुनक़ते हैं। व कज़ालिका रिवायत अबी दाऊद अन हारून बिन मुग़ीरा, और इसी तरह हालत है किसकी, अबू दाऊद ने जो रिवायत नकल की हारून बिन मुग़ीरा से, वही जो रिवायत हमारी मोरद नज़र है, ये भी क्या है, इसी तरह मुनक़ते है। तो लिहाजा यहाँ तक ये चीज़ साबित हुई कि ये चिश्ती साहब जो रिवायत बयान कर रहे थे ये मुनक़ते है और सही नहीं है। इंशाल्लाह आगे चल के मज़ीद भी जिसने रिवायत बयान की कि वो उनका नाम, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा वगैरह, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह उस रिवायत की जो सुनन अबी दाऊद की रिवायत है उसके ऊपर हम तफसील से कलाम करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।